Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So guys and girls and everybody, welcome back. Let's get started with today's lecture. Okay, just trying to make sure that the camera is recording me correctly. If not, I did have a complication with one of the previous lectures where the audio was off and I didn't realize it. Okay, nevertheless, getting started. Our partners that would be present in this problem, that would help us understand and solve this problem, are Reena and Aarti. Again, question में, well, ये partners है, आपके टेक्स्ट बुक में भी यही पार्टनर्स है. क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पेज नंबर कौन सा है, आपको टाइटल में मिल जाएगा. ओके, थंबनेल में भी होता है बट टाइटल में थोड़ा इजी हो जाता है पढ़ने में. राइट नाउ इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो काफ़ी प्रॉब्लम्स में इक्वल होता है, ये प्रॉब्लम में क्या है वो देख लेते हैं. ओके, राइट नाउ जो सम है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सो from the following trial balance and adjustments given below of Reena and Aarti, you are required to prepare trading profit and loss account for the year ended 31st March 2019. एक बात मैं clarify कर रहा हूँ, even though it's almost at the end of this particular chapter, is there are multiple colleges and in that multiple professors who ask for the trading and P&L account to be solved on one page. Please note that, to be solved on one page, which is perfectly fine. तकलीफ जैसे आज का प्रॉब्लम आप देखोगे ना तब होगी. अभी ऐसा क्यों है कि आज के प्रॉब्लम में क्या खास बात है. ओके, पहले मेरे को वो क्लैरिफाई करने दो. एक्चुअली क्लैरिफाई नहीं, आपको दिखाने दो. सो ये मेरे पीछे है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड यू सी अ लॉट ऑफ डेकोरेशन इन दिस. ओके, अब ये डेकोरेशन में क्या है पहले वो तो मैं क्लियर कर लूँ. जो बानो फॉर्मूला है बैड डेप्ट वाला वो नॉर्मल है, बट टुडे बानो के घर में, मतलब P&L अकाउंट में आते हैं ना हमारे रिश्तेदार हमको विजिट करने के लिए. ओके, और एकदम रेयरली जुड़वे आते हैं या जुड़वी आती है, ट्विंस, आपको जैसे कहना है आप कह सकते हो. इन टुडेज सोल्यूशन, बिकॉज इन टुडेज क्वेश्चन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द दन्नो फॉर्मूला. तो पहले हम बोल सकते हैं बन्नो फॉर्मूला,
ओके, थोड़ा राइमिंग करने के लिए। और आज हमें चाहिए द नो फॉर्मूला। नाउ प्लीज होल्ड ऑन, ये फॉर्मूला किसके कनेक्शन में है? लेट मी पॉइंट इट आउट टू यू फर्स्ट। सो DANO, just like BANO, but that is bad debt, this is discount. Debit में you have discount allowed, additional discount, RFDD. Now if you wonder, which is fine, सर RFDD क्या है? RDD तो सुना है आज तक, थोड़ा नीचे आ जाइए, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ओके, आई रिपीट, जो डेटर कस्टमर आपके अच्छे कस्टमर है, वो आपको कभी टेंशन नहीं देते। देखो, हर दुकानदार कस्टमर को लेकर टेंशन में रहता है। हर बैंक जिसको लोन देता है, वो बैंक भी थोड़े टेंशन में रहता है, लोन देगा कि नहीं देगा, कब देगा, कितना देगा, नहीं देगा तो हम लोग क्या करेगा। सो इफ अ कस्टमर इज अ गुड कस्टमर, मतलब वो गुड्स लेता है एंड टाइम पे बिना कोई रिमाइंडर के वो आता है और हमको पैसे देकर जाता है या ऑनलाइन ट्रांसफर करता है, तो आई एम लाइक कितना अच्छा कस्टमर है। ओके, मेरे से माल भी लेकर जाता है और टाइम पर मुझको पैसा देता है, विच इज़ वेरी मच अ रिक्वायरमेंट, बिकॉज अगर पैसा आएगा नहीं तो दुकानदार माल खरीदेगा कैसे और उसको बेचेगा कैसे, मतलब वो गाड़ी अटक जाएगी। सो such good customers को, but not everybody is a good customer, please note that। हाँ, पांचों उंगलियां सेम नहीं होती ना। तो अगर गुड कस्टमर है हमारे पास, जो होते हैं 10 में से 8 गुड कस्टमर ही रहेंगे, एक दो में थोड़ा तकलीफ, जिसके लिए उंगली टेढ़ा करना पड़ता है पैसा निकालने के लिए। जो गुड कस्टमर्स है उनके लिए हम क्या गुड कर सकते हैं? डिस्काउंट। वी शुड अप्रिशिएट देम। ओके, हमें उनकी सराहना करनी है। कैसे करनी है? हम डिस्काउंट देंगे, हम बोलेंगे भैया आप टाइम पे पैसा देते हो, मैडम आप हमारा पैसा टाइम पे देती है, हम आपको डिस्काउंट देंगे। ओके, हाँ, तो उसको कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। ओके, और अगर आप आगे जाकर भी डिस्काउंट देने वाले हो, ओके, तो उसको कहते हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, फ्यूचर का डिस्काउंट, फ्यूचर का डिस्काउंट। हाँ, सो द फॉर्मूला ऑन द डेबिट साइड which is below the Banno formula is called as Danno and it is related to discount. Many may ask me, in fact almost all students, सर आज तक क्यों नहीं किया? आज तक क्वेश्चन में ये फॉर्मूला की जरूरत नहीं थी। जब क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आ गई है, वो मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। ओके, इसके लिए ये फॉर्मूला आपको करना है। सो प्लीज नोटा, एवरी प्रॉब्लम में मत करना, आपका फिजूल का विदाउट रीजन 4 लाइन चला जाएगा। एंड लाइक आई सेड एट द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, अगर on one page your teacher is telling you, your professor is telling you, your sir is telling you prepare trading up profit and loss down, it's very difficult उतने में फिट करना। दैट इज द रीजन मैं अलग अलग पेजेस पे आपको बोलता हूँ, ताकि आप आराम से ओके टांग फैलाकर वो लिख सको। हाँ, सो आई रिपीट माई सेल्फ, आई टेल यू इन द क्वेश्चन, आई शो इन द क्वेश्चन कि आज डेबिट में दन्नो एंड ऑल्सो क्रेडिट में आपको दिखता है एक और दन्नो है, बिकॉज डिस्काउंट 2 तरीके के होते हैं, उतना तो आपको पता होना चाहिए। डेबिट डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड। सो जस्ट लाइक मैं मेरे गुड कस्टमर्स को डिस्काउंट दूंगा, आई विल से मैं भी तो भला हूं, मैं भी तो किसी का पेमेंट करता हूं, क्रेडिटर का, तो मैं डिस्काउंट दे रहा हूं तो मेरे को डिस्काउंट क्यों नहीं मिलना चाहिए? यस, कर भला सो हो भला, कि अगर मैं किसी का पेमेंट रोकता नहीं हूं तो आई एम ऑल्सो वर्दी ऑफ अ डिस्काउंट, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, सो फॉर दैट देयर इज अ क्रेडिट बिकॉज इट इज एन इनकम, इसके लिए। सो द नो अगेन, बट ऑब्वियसली it is discount received, income वाला, and down you have new RFDC minus old RFDC, just like Banno formula, जो old है वो minus होगा और जो new है वो plus, and the full form is at the bottom, reserve for discount on creditor. So debit Danno का बिल्कुल उल्टा is credit Danno. Many may ask me कि सर ये ऐसे नीचे लिखना है क्रेडिट दन्नो, नहीं, वो क्या है ना, जस्ट टू शो यू कि डेबिट वाला दन्नो और क्रेडिट वाला दन्नो उसका बिल्कुल हम शक्ल है।
ओके मैंने आसपास में लिखा है, यू डोंट हैव टू, ये ऊपर मत, या ऊपर लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड इनफैक्ट फॉर योर मोर अंडरस्टैंडिंग मैंने ये डब्बा बनाया है बिकॉज इन द फुल क्वेश्चन आज आपका फोकस किस पे होना चाहिए, ऑन द बन्नो, द डेबिट दन्नो एंड द क्रेडिट दन्नो, ये मेन चीज़ है। एंड ऑब्वियसली इन द बैलेंस शीट, क्योंकि ये डेटर क्रेडिटर से कनेक्टेड है, वहाँ पे भी मैंने ब्लॉक बना के दिया है। ओके, नाउ दैट इज द एक्सप्लेनेशन कि हाउ डू यू राइट डेबिट दन्नो and credit dhanno. In that, how do you do fill in the blanks and calculations during this particular problem? Okay, so our last few lectures, I'm not very sure, maybe 3-4 lectures have been okay time wise, कम टाइम में खत्म हो गया, ओके रीजनेबल टाइम में। आज ये थोड़ा लंबा जाएगा। गोइंग बैक टू माय क्वेश्चन and reading this ahead. So on the debit side, trial balance obviously on 31st March 2019, you have the following items. So purchases है, आप उसको सोचो या लिखो, एक्चुअली सोचो मत, लिखो ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज सबसे पहला स्टेप तो यही है, मार्क करना। ओके दूसरे लेक्चर्स में, ओके आई थिंक मैं आई बीन टीचिंग OCM, सो इन दैट आई हैव कम टू चैप्टर नंबर 2, और उसके अंदर द वेरी फर्स्ट थिंग इज the chapter's name is functions of management, okay, and the very first thing is planning, okay, and there is a very long answer, importance of planning, okay, और उसमें बताया गया है कि प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंस क्या है, इट शोज यू द पाथ, रास्ता, ओके, एक है कि इट enables, okay, other functions of management to be successful. What are you doing right now when you do your markings? You are doing planning. And जैसे मैंने बताया ना OCM के चैप्टर में प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, इट शोज यू द पाथ, तो आपको ये मार्किंग भी रास्ता दिखाएगा सॉल्व करने का, ओके, एंड इट विल गिव यू सक्सेस, ओके, इट विल improve your performance. These are all things that I'm saying from OC, because what you're doing right now is planning. Everything जो OC के वो पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। इट्स इनफैक्ट एप्लीकेबल एनीवेयर वेरेवर यू डू प्लानिंग। ओके, डेटर बिकम्स एसेट, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, बैड डेट PNL, वेरी सिंपल, ओके, वो दैट ऑलवेज लुक्स लाइक PUBG फॉर मी, बट PNL है। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर एसेट। डेबिट में जो डिस्काउंट है ना, नॉर्मली वी डोंट हैव अ फॉर्मूला फॉर डिस्काउंट, बट टुडे देयर इज अ डेबिट डिस्काउंट फॉर्मूला, इन दैट वी विल राइट दिस डिस्काउंट विच इज 1000 डिस्काउंट अलाउड। रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट, रेंट PNL, क्योंकि अगर फैक्ट्री रेंट कहे तो वो ट्रेडिंग में जाएगा। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस, वेजेस ट्रेडिंग, इंश्योरेंस PNL, ड्रॉइंग पार्टनर्स से कनेक्टेड है तो पार्टनर्स कैपिटल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, दोनों एसेट है। इफ यू आर समवन हु हैज डायरेक्टली जम्प्ड ऑन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, मतलब यू डिड नॉट नो अबाउट द चैनल एंड यू हैव जस्ट नाउ रियलाइज दैट देयर इज स्टीवन सर मेक्स इट इजी, उसमें ये सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, एंड आप डायरेक्टली ये प्रॉब्लम पे आ गए हो, तो थोड़ा तकलीफ होगा, बिकॉज आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग टू यू ये ट्रेडिंग क्यों है, ये PNL क्यों है, ये एसेट क्यों है, बिल्कुल नहीं, बिकॉज दिस इज, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, द 31st और द 32nd लेक्चर, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट 30 लेक्चर्स हैव बीन डन। सो 30 लेक्चर्स के बिगिनिंग में मैंने ये पूरा तामझाम एक्सप्लेन किया होगा, विच आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वो प्लीज़ बिगिनिंग से ही देखना, अभी आप अगर देखोगे तो काफ़ी कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, सेल्स हम ट्रेडिंग कहते हैं, क्रेडिटर लाइबिलिटी, परचेस रिटर्न ट्रेडिंग, RDD ओल्ड RDD है, वो बन्नो फॉर्मूला में जाएगा, PNL। डिस्काउंट आज हमारे पास में क्रेडिट में भी एक फॉर्मूला है डिस्काउंट के लिए, रिसीव्ड, तो ये PNL में जाएगा। कमीशन PNL बट क्रेडिट साइड, एंड कैपिटल इज पार्टनर्स कैपिटल। ओके, अभी जब तक मार्किंग आते हैं, कौन सी एडजस्टमेंट्स को मार्क करने, वी हैव गॉट 7 एडजस्टमेंट्स अबाउ मी। द फर्स्ट वन इज क्लोजिंग स्टॉक, देयर इज नो मार्किंग। द सेकेंड वन इज राइट ऑफ, राइट ऑफ का मतलब निकाल दो, निकाल देगी, बट क्या निकालूं, टेक्स्ट बुक में वर्डिंग्स में थोड़ा गड़बड़ है, आई रिपीट, टेक्स्ट बुक में वर्डिंग्स में एडजस्टमेंट 2 में गड़बड़ है,
दे हैव सेट टेक्स्ट बुक में राइट ऑफ 900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, वो नहीं होना चाहिए, इट शुड बी बैड डेप्ट। ओके, वहाँ पे डाउटफुल वर्ड नहीं आना चाहिए, बिकॉज बैड डेप्ट पक्का बैड डेप्ट है, वो डाउटफुल नहीं होता, बिकॉज इट इज अ पास्ट बैड डेप्ट। RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट, इज फ्यूचर बैड डेप्ट, उसका डाउटफुल होता है डेफिनेटली। सो टेक्स्ट बुक में देयर इज लिटिल बिट ऑफ अ मिस्टेक। ओके, आई गेस नेक्स्ट टाइम जब टेक्स्ट बुक नया वर्जन आएगा तो उसमें वो सुधर जाएगा, बट राइट नाउ जो करेक्ट है वो मैंने ऊपर लिख के दिया है। ओके, सो लेट मी अगेन कंटिन्यू। राइट ऑफ 900 फॉर बैड डेप्ट, कौन कराता है बैड डेप्ट? डेटर, तो 1 स्टार फॉर डेटर। कंटिन्यू, एंड क्रिएट a provision for reserve for doubtful debt. Reserve for doubtful debt is RDD. It is new RDD. Doubt फिर से डेटर पे ही है तो 1 more star. So that is normal marking for data. Third adjustment, today's VIP adjustment. Create a provision, provision मतलब reserve, for discount on data. Please read that carefully. ये वाला create a provision मतलब reserve फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा। तो अगर वो वर्डिंग्स आप साथ में पढ़ो तो वो बन जाता है रिजर्व मतलब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा, RFDD। एंड बिकॉज ऑफ दिस टुडे वी आर लर्निंग द फॉर्मूला ऑफ द नो। अदरवाइज इन 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स वो फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, बट कभी ना कभी मुझको, एंड ये चैप्टर लगभग खत्म होने आ रहा है, सो आई एम टेकिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस फॉर्मूला टुडे टू यू। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस RFDD और थोड़ा आगे पढ़ना एंड क्रेडिटर, इतना ही बोला है। तो पहला है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, बाद में है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, पूरा रिपीट नहीं करते हैं। तो RFDD एंड RFDC दोनों है, तो देयरफॉर 1 स्टार फॉर डेटर एंड 1 स्टार फॉर क्रेडिटर। इन ऑल ऑफ दिस स्टार मार्किंग प्लीज रियलाइज डेटर को 3 स्टार आ चुके हैं, तो आपको 5 लाइन खाली रखना पड़ेगा। आई होप यू नो दैट। पॉइंट नंबर 4, आउटस्टैंडिंग, वेजेस स्टार करो, सैलरीज को स्टार करो। 5th ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट मैं लास्ट टाइम के क्वेश्चन के कुछ झलकियाँ आपको दिखाऊंगा, ये बताने के लिए कि टेक्स्ट बुक में क्या गड़बड़ था लास्ट टाइम। इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स, स्पेसिफिकली बोला, जस्ट अबाउ मी, विथ इफेक्ट फ्रॉम WEF 1st April 2018, मतलब द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। आपको क्या करना है? कुछ नहीं, इंश्योरेंस को मार्क करना है। लेटर ऑन व्हेन आई कम टू दैट पार्ट मैं थोड़ा उस पर स्ट्रेस करूंगा। 6 पॉइंट डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग। चलो भाई, तो इतने मार्किंग्स हो गए। पॉइंट नंबर 7 बराबर से पढ़ना है, जस्ट अबाउट। रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द कैपिटल रेशियो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वर्ड कैपिटल रेशियो। Now the capital if you see is 50,000, 30,000. Please देखना 50,000, 30,000. अब ये 50, 30,000 से आपको रेशियो लाना है। We did that once, but मैंने वो ओरली बोला रहेगा, आज लिख के दिखा रहा हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो। सो कैपिटल में से रेशियो कैसे आता है? सिंपल, लिख लो 50,000, 30,000। उसमें से मैथ्स नहीं, कैंसिलेशन करना है। ओके, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना जूनियर KG के, उनको पेन पकड़ना सिखाते हैं, वेल पेन नहीं पेंसिल पकड़ना, बट सबसे पहले दे आर नॉट टोल्ड कि आपको ABC, नहीं, दे हैव नो आइडिया अबाउट दैट, जस्ट होल्ड द पेंसिल एंड स्क्रिबल, पहले वही बोलते हैं। ओके, स्क्रिबल, सो दैट दे नो, दे गेट द फीलिंग ऑफ द पेंसिल, पहले कंट्रोल तो आ जाए। ओके, कुछ लोग अपने रहते हैं, ओके, यंगस्टर्स जो मतलब बाइक आज ही सीखा है और उसके ऊपर स्टंट चालू करते हैं। अरे पहले कंट्रोल तो कर लो बाइक को, एक्सेलरेटर को, दूसरे दिन पे स्टंट मार रहे हो, एक्सीडेंट हो सकता है। ओके, और वैसे भी स्टंट मारना इज नॉट अ वेरी गुड, प्रोफेशनल ट्रेन इट्स अ डिफरेंट थिंग। सो व्हाट डू यू डू? कैंसिल। क्या कैंसिल करना है? कॉमन जीरोस। कितने जीरोस कॉमन है? 50,000 और 30,000 में 4 जीरो कॉमन है, जो कैंसिल कर लिया। बचा क्या? 5:3। उसके बाद कुछ नहीं, खत्म हो गया, और क्या होगा उसका? सो यू कैन गेट अ लीस्ट फॉर्म देन दिस। 5:3 इज द लीस्ट फॉर्म, दिस इज योर रेशियो। 5:3 मतलब अपॉन 8/8। आई रिपीट, 2 थिंग, रेशियो डिसाइड हो गया, ऑल्सो द एंटायर क्वेश्चन हैज बीन डिस्कस्ड। तो कुछ खास नहीं करना, सोल्यूशन स्टार्ट करना है
एंड व्हेनेवर आई कम टू द डिस्काउंट वाला मामला, व्हेनेवर आई कम टू द इंश्योरेंस वाला मामला, थोड़ा मेरा गाड़ी में स्लो करा दूंगा. ओके, राइट नाउ परचेसेस, दैट्स वी स्टार्ट विथ द कि भाई इनका आप इनके घर पे इनको भेज दो यहाँ से. हाँ, परचेसेस 35,500 तो इन ट्रेडिंग अकाउंट लिख दिया इन अ कॉलम. नेक्स्ट सनरी डेटर्स, आज के क्वेश्चन में तो बहुत इंपॉर्टेंट है. सनरी डेटर्स 40,000 जस्ट अबाउ में. नेक्स्ट सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लीजिए 1,000. ओपनिंग स्टॉक trading account. There was only one question in which I remember there was no opening stock, in which you had to do no worry. Why? Because there is a possibility, ऐसी गुंजाइश है that you may get a question without opening stock. हाँ, it is very rare that you will get a question without closing stock. Okay, क्योंकि हो सकता है कि at the beginning of the day, दिन में, ओके, एट द बिगिनिंग आपकी दुकान में माल नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है. ओके, वो कोई भी हो, आप ज्वेलरी बेचो, मोबाइल बेचो, फल बेचो, फूल बेचो, वट एवर यू सेल, यू विल हैव समथिंग रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द डे नॉर्मली. नेक्स्ट बैड डेप्ट, वी गो टू द नॉर्मल बर्नो फॉर्मूला और बी में हम लोग लिख देंगे 500. नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, एक स्टार है तो प्लीज लीव 1 लाइन. प्लीज नोट डेटर के नीचे देयर आर 5 लाइन्स एंड देन ये मेरे सिर पे आया 25,000 लैंड एंड बिल्डिंग. नेक्स्ट फर्नीचर 20,000, ये मेरे सिर पे नहीं, एक्चुअली मेरे आसपास में आएगा. फर्नीचर 20,000. नेक्स्ट डिस्काउंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हम लोग पहले किया है बट आज ये प्रेजेंटेशन चेंज कर रहे हैं. ऑन द डेबिट साइड वी हैव अ फॉर्मूला बाय द नेम ऑफ डिस्काउंट अलाउड. ओके, देन नो, तो उसके डी में डिस्काउंट अलाउड में आप लिखोगे 1,000. आई होप दैट वाज विजिबल टू यू. ओके, जो क्रेडिट में आएगा वो क्रेडिट के डिस्काउंट में हम बाद में लिख लेंगे. मूविंग ऑन, रॉयल्टी, ये तो प्रोडक्शन के पहले पे करते हैं ना, सो 2 रॉयल्टीज 700, ये प्रोडक्शन के पहले दिया जाता है. नेक्स्ट वन रेंट, पीएनएल में लिख लीजिए. सो फर्स्ट लाइन 1,900. कभी ऊपर नीचे हो जाता है ना पीएनएल के अंदर, डोंट वरी, सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, ऊंच नीच, बट डेबिट का डेबिट में लिखना है, क्रेडिट का क्रेडिट में लिखना है. नेक्स्ट इज सैलरीज, that has an adjustment, so we leave 1 line. Please make sure 3,000. Next wages, trading account में लिख लो and do leave 1 line, because we for the last 3 or 4 lectures we have very same and simple adjustment on wages and salaries. Normally outstanding आता है, in fact today's question also has outstanding. So in a way many of you are like, sir, now we are very good at outstanding, so that's good because you had practice this again and again and again. Next is insurance. That is important today for the wordings that have been used. तो अभी आप लिख लो 1,500, बाद में हम लोग देख लेंगे. Then comes drawings. पार्टनर्स के डेबिट साइड पे लिखना है. रीना और आरती जितना उन्होंने ड्राइंग्स किया, सो 2,000 and 1,000. कैश एट बैंक 11,500 एंड कैश इन हैंड. बैलेंस शीट में आ जाएगा, मेरे अगल बगल में आ जाएगा. सो कैश एट बैंक 11,500 एंड ऑल्सो कैश इन हैंड 2,000. ओके, होपफुली इवन दो आई एम इन बिटवीन, आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू. इधर ओके, यू आर सॉल्विंग बैलेंस शीट ऑन 2 पेजेस, तो आराम से आप लिख सकते हो. कोई इनफैक्ट सम टीचर्स, प्रोफेसर्स, sirs in colleges, they make you solve balance sheet on 1 page. Again, it's there's nothing wrong in it. The only thing is थोड़ा कंजेस्ट करके लिखना पड़ता है. When you travel in a train, when you travel in a bus, okay, you are not comfortable. अगर वो गर्दी वाला है, ट्रैवल कर तो लेते हो बट यहाँ वहाँ से पसीना
आप अनइमेजिनेबल जगह से निकलना चालू हो जाता है. सो यू वुड वांट टू बी कंफर्टेबल. तो उसी तरह यहाँ पे मैं वही देख रहा हूँ कि बाबा ये जो कैश फर्नीचर आप लिखो वो थोड़ी कंफर्टेबल है. सो डेबिट का लिस्ट खत्म, क्रेडिट स्टार्ट करते हैं. सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा एंड माइनस करके बाहर आंसर भी आ जाएगा 57,200. अभी नहीं तो बाद में, बट कभी ना कभी ड्यूरिंग द सम ही माइनस करके बाहर डाल देना. नेक्स्ट क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड. अगेन दैट इज इंपॉर्टेंट, मैंने उधर डब्बा बना के रखा है. ओके डब्बा, ताकि वो आपका ध्यान वहां पर बना रहे. नेक्स्ट purchase return, I'll subtract from purchase and I'll put the answer outside, which is very simple, 35,000. Next RDD, बस in the Banno formula, old RDD I'm writing. माइनस नहीं कर सकते हैं because बाकी का पूरा तामझाम बाकी है, and then the eventual answer will go outside. Next डिस्काउंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द क्रेडिट साइड डिस्काउंट है बट विथ फॉर्मूला. सो आई रिपीट, ये डिस्काउंट के अंदर एवरीथिंग इज ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस. तो हम लोग ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं जस्ट अबाउट में 50, बढ़ा नहीं है एकदम, बट स्टिल एवरी रुपी इज इम्पॉर्टेंट. 50. नेक्स्ट कमीशन, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है प्लीज़, तो उसको फॉर्मूला में फिट मत करना, ऊपर लिख लो. बाय कमीशन 250. नेक्स्ट कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि खुद नंबर तो इंपॉर्टेंट ही है, बट बिसाइड्स दैट फ्रॉम 50 एंड 30,000 you got the ratio today which was 5:8. Abhi we are done with our trial balance. So our first not extra job, next job is to do adjustments. तो पहला है कि आप closing stock करो 22,000. That is again many of you would be sir ये तो हमको एकदम रात को नींद से भी उठाओगे तो भी याद आता है, तो भी याद है, which is good thing, क्योंकि आई थिंक अगर मैंने 20 प्रॉब्लम्स किए हैं तो आपने 20 टाइम्स क्लोजिंग स्टॉक किया है. सो ऑब्वियसली यू हैव गॉट गुड एट इट. सो क्लोजिंग स्टॉक 22,000. देन कम्स, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, राइट ऑफ 900 फॉर बैड डेप्स. इतना कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है. बैड डेप्ट हुआ है, किसने कराया? बैड डेप्ट कस्टमर कराता है. कस्टमर कहाँ पर है? एसेट साइड पे. बैड डेप्ट बिल्डिंग, फर्नीचर, बैंक, दे डोंट गिव यू बैड डेप्स. बैड डेप्ट का मतलब पैसे का नुकसान, पैसा आपका भागकर लेकर गया, तो वो डेटर करता है. तो फ्रॉम द डेटर आपको वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. आप यू कैन यूज द वर्ड एडिशनल बैड डेप्ट, यू कैन यूज द वर्ड फर्दर बैड डेप्ट, जो भी है माइनस करो. राइट ऑफ का मतलब है रिमूव कर दिया. 39,100 इज रिमेनिंग. ओके, वो सब अपडेट करके रखा है हमने. Second effect of additional bad debt is the formula of Banno. तो वहाँ पे लिख दिया हमने 900. This is nothing new. This for the last 10-12 problems continuously in almost every problem we have done. Then it says in the adjustment point number 2 above, and create a provision for what? Reserve for doubtful debt. So that we call as RDD, not RFDD. RDD, doubtful debt. किस पे डाउट है? डेटर पे डाउट है. द गुड थिंग टुडे इज उन्होंने वो दिया है 1000, तो आई डोंट हैव टू डू 2%, 3%, 5%, कुछ परसेंटेज ढूंढने का जरूरत नहीं. द RDD विच इज द न्यू RDD इज 1000, तो जस्ट माइनस इट. नॉर्मली आई राइट अ परसेंटेज क्योंकि क्वेश्चन में परसेंटेज होता है. 1000 माइनस किया तो द लेटेस्ट डेटा इज 38,100. नाउ आई वाज एट द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर टॉकिंग व्हाट? गुड डेटर्स, गुड कस्टमर्स. ना हुआ द गुड कस्टमर्स. मेरे ऊपर अगर आप देखो तो ये जो लेटेस्ट है ना 38,100, दे आर द गुड कस्टमर्स, बिकॉज उसके ऊपर हुआ द गड़बड़ कस्टमर्स. तो आपने सब गड़बड़ कस्टमर्स को माइनस किया, रिमूव. सो द गुड कस्टमर्स आर रिमेनिंग नाउ 38,100. न्यू RDD का सेकेंड इफेक्ट PNL में लिख लो. व्हेन यू डू दैट, बन्नो फॉर्मूला इज खत्म, उधर कोई सीट बाकी नहीं है, तो आप वो सॉल्व करके बाहर डाल सकते हो. तो 500 प्लस 900 प्लस 1000 माइनस 800, देन पुट इट आउटसाइड, यू गेट
1600. If you don't do that or if you do it wrong, then my dear, मार्क्स तो एक्सपेक्ट मत करना. डोंट से बट सर मैंने बैड डेप बराबर लिखा, ओल्ड आरडीडी बराबर लिखा. नहीं, मार्क्स उसके लिए नहीं मिलते हैं. मार्क्स मिलते हैं आप पूरा. इफ यू आर कुकिंग समथिंग, कुक, ओके, और आप बोलोगे सर मैंने हल्दी बराबर डाला, मैंने धनिया का पाउडर बराबर डाला, हाँ बाकी थोड़ा गड़बड़ हो गया, बट वो थोड़ा गड़बड़ की वजह से जो आउटपुट बना ना, वो तो बहुत गड़बड़ हो गया ना, तो ऑब्वियसली टेस्ट अच्छा नहीं आएगा. हाँ, तो थोड़ा सिमिलर वैसे ही है कि भाई आउटपुट जो आउटर कॉलम का, दैट इज व्हाट मैटर्स. कस्टमर के पास तो वही जाने वाला है, या मतलब एग्जामिनर के पास वही जाएगा. हाँ, नाउ दैट इज डन. दैट वाज एडजस्टमेंट नंबर 2. उसमें कुछ नया नहीं था. एडजस्टमेंट नंबर 3 में है जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी. क्रिएट ऊपर अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा. प्लीज मेक श्योर आपने वो ध्यान दिया. क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा. सो ये जो प्रोविजन वर्ड है, दैट मीन्स रिजर्व. ओके, प्रोविजन रिजर्व वो इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा. नाउ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट इज RFDD. ओके, आपको डिस्काउंट देना है आपके गुड डेटर्स को, नॉट ऑल डेटर्स को. आई रिपीट, कितने का? 3%. सो वेयर आर योर गुड डेटर्स? ये 38,100, दे आर माई गुड डेटर्स. उनको मैं डिस्काउंट देगा. हाँ, डिस्काउंट देगा का मतलब क्या है? आई विल टेल देम डोंट पे मी 3%. तो इट इज अ सबट्रैक्ट. मैं खुद बोल रहा हूँ कि 3% सर आप मत दो. आप भले इंसान हो, आप मेरा पेमेंट मेरे को बराबर टाइम पे करते हो, तो इसके लिए मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, कर रही हूँ. माइनस कर दिए. 3% ऑफ व्हाट? प्लीज नोट 38,100. ओके, मेरी उंगली ऊपर पहुंच नहीं पाएगी क्योंकि स्क्रीन उतना ही है, बट लेटेस्ट डेटर्स, दे आर योर good daters, your good daters. So when you do 3% of 38,100, you get 1,143. 1,143 and माइनस करके आप बाहर डालोगे 36,957. बाकी कोई कुछ नहीं देखेगा. एडिशनल बैड डेट, न्यू RDD, न्यू RFDD. You will only get marks if that 36,957 is correct. And if it is not correct, again मैं बोल रहा हूँ, आपका नमक सही रहने दो, हल्दी सही रहने दो, धनिया सही रहने दो, कुछ भी, मिर्ची पाउडर सही रहने दो, बट बाकी का अगर आप गड़बड़ करोगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे. सेकेंड इफेक्ट ऑफ दिस न्यू RFDD इज इन द डेबिट फॉर्मूला. प्लीज नोट, डेबिट में यू हैव रिटन प्लस न्यू RFDD, उसमें लिखना 1,143 and there is nothing else connected to that formula. There is nothing else connected to that formula. तो आप ऐड करके बाहर डाल दो 2,143. ओके, सम में से सर डू वी हैव टू नेसेसरली राइट द फुल फॉर्मूला? नॉट नेसेसरी. somebody will say sir in discount I directly added new RFDD, I got the same answer. Yes, perfectly correct. But if you had old RFDD, then you had to use this particular formula, क्योंकि प्लस भी करना है, माइनस भी करना है. तो आई रिपीट माई सेल्फ, प्रेजेंटेशन के अलग अलग तरीके होते हैं, आंसर वही आता है. बिकॉज आई डोंट हैव मैनी प्रॉब्लम्स टू टीच यू कि दन्नो डेबिट का क्या है, दन्नो क्रेडिट का क्या है. तो मैंने ये वाले क्वेश्चन में मौका ले लिया आपको ये वाला फॉर्मूला दिखाने का. मे बी नेक्स्ट लेक्चर में नहीं होगा. ओके, जस्ट लाइक RFDD है, सिमिलरली इन द क्वेश्चन देयर इज RFDC, बिकॉज दे आर सेइंग 3% का डिस्काउंट आपने दिया, तो हमको ऊपर कहा है एंड क्रेडिटर एट 5%. हमको डिस्काउंट मिला है, किससे? क्रेडिटर से. सप्लायर हमको डिस्काउंट देता है 5% का. डिस्काउंट इज ऑलवेज अ माइनस, बिकॉज द क्रेडिटर, कौन सा क्रेडिटर? प्लीज लुक, 25,700. दैट क्रेडिटर इज सेइंग सर 5% मत दो. हमको व्हाट्सएप करके, ईमेल करके, कॉल करके कि सर यू आर गुड कस्टमर. ओके, सर मतलब यहाँ पे रीना आरती है ना, सो रीना आरती में भी वेरी गुड पीपल, उन लोग किसी का पैसा नहीं अटकाते, टाइम टाइम पे देते हैं, तो वो लोग खुश, वो लोग बोल रहे 5% मत दो, रीना जी, आरती जी मत दो. चलेगा. 5% कितना आता है? 1,285. दे आर नॉट सिंपल कैलकुलेशन, थोड़ा अटपटा है, आपको रफ वर्क में कैलकुलेशन करना पड़ेगा. बट व्हेन यू गेट द करेक्ट आंसर यू गेट 24,415. 1 रुपया कम ज़्यादा हो जाएगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा. डोंट एक्सपेक्ट सर आधा मार्क तो दे दो, नहीं मिलता. सेकेंड इफेक्ट ऑफ दिस, कुठे येणार फॉर्मूला में, बट क्रेडिट का. यू कैन सी RFDC क्रेडिट साइड, ये ऊपर आया, एंड देन
देन इसके अलावा भी इसके अंदर कोई कनेक्शन नहीं है, ये खत्म हो जाता है, तो बाहर आप लिख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे 1335. सो डेबिट बनो, डेबिट दन्नो एंड क्रेडिट दन्नो इज डन. इट कैन बी मोर कॉम्प्लिकेटेड बट एटलीस्ट ये प्रॉब्लम में इतना था. ओके, सो आर एडजस्टमेंट 1 2 3 डन. फोर्थ वेरी सिंपल, आई विल नॉट टेक अप योर टाइम. आउटस्टैंडिंग वेजेस में 700 ऐड करो, जल्दी जल्दी कर देता हूँ मैं. एंड आउटर कॉलम में आई विल राइट 1500. द सेकेंड इफेक्ट ऑफ 700, डोंट फॉरगेट दैट. मैनी स्टूडेंट्स सो जल्दी 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 जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी में 2 इफेक्ट मत बोलना, वो तो फंडामेंटल चीज़ है. 1 and 2 टाइम, 1 and 2 टाइम. सो लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग वेजेस, आई थिंक सैलरी बाद में अलग से दिया गया है, सैलरी बाद में अलग से दिया गया है. सैलरीज 800, सैलरीज 800 उसमें ऐड कर देते हैं, यू विल गेट 3800. एंड सेकेंड इफेक्ट जहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखा, मतलब लाइबिलिटी साइड 800. So nothing special. We have done this on multiple occasions. In fact, maybe कुछ 15 बार तो किया ही होगा हमने. Next, point number 5. This is important. Insurance is paid for 15 months. ऊपर पढ़ो, ऊपर. WEF with effect from 1st April 2018. Is there anything special in 1st April or on 1st April? बिल्कुल नहीं. ओके, 1st April साल का पहला दिन होता है. दे आर सेइंग इंश्योरेंस को 15 महीना 15 मंथ्स का पेमेंट किया. नॉर्मली 15 मंथ्स इज नॉट रिक्वायर्ड, 12 मंथ्स इज ओके, क्योंकि वी एंड ऑन 1st April, 31st मार्च को हमारी गाड़ी खत्म. 12 महीना पे करो, खत्म मामला आपका. बट अगर आप ज़्यादा भरो तो फिर वो प्रीपेड हो जाता है. नाउ बिफोर आई सॉल्व टूडेज प्रीपेड इंश्योरेंस, लेट मी शो यू लास्ट टाइम क्या था, बिकॉज आपको ये बिकॉज समझ में आ जाएगा. मेरे पीछे है लास्ट टाइम का क्वेश्चन, प्लीज नो, आज का नहीं है, ये लास्ट टाइम का है. इसके एडजस्टमेंट नंबर 2 में पढ़ो, प्लीज रीड. इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30th June 2019. प्लीज नोट, ईयर एंडिंग 30th June 2019 का मतलब है 3 महीना आगे. ये भी था प्रीपेड इंश्योरेंस. आज जो मैंने पढ़ा वो भी है प्रीपेड इंश्योरेंस, बट इट इज सॉल्व्ड डिफरेंटली. इन दिस सम द वर्डिंग्स अबाउ इज इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर, नॉट 15 months, फॉर द ईयर. So when you say for the year, that means 12 months. But उसके अंदर, because it is still 30 June, it's gone 3 months ahead. Our year ends on 31st March. Okay? उसके बाद में अप्रैल, मई, जून, 3 महीना आगे. तो अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली डिफरेंस क्या है. लास्ट टाइम का आपने सॉल्व कैसे किया? दिस इज हाउ यू डिड. द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस into 3/12, 3 महीना प्रीपेड है, but it was upon 12 because the wordings were for the year ended. But today it is for 15 months, so it cannot be upon 12 because it is not paid for 12 months, it is paid for 15 months. There is a big reason. मैं ये रिपीट कर रहा हूँ और मैं ये दिखा रहा हूँ. लास्ट टाइम आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए? फॉर द ईयर एंडिंग इज अ डिफरेंट ट्रीटमेंट, 3/12. बट today it is not for the year ending, then it is for what? For 15 months. So it cannot be upon 12 because it is not paid for upon 12. I repeat, very important. मुझे थोड़ा पोजीशन मेरा शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि उस तरफ पे आंसर आने वाला है. And what is that? हाँ, so the entire amount of insurance is 1500. उसको आप मल्टीप्लाई करो किससे? 3. बट प्लीज नोट, लास्ट टाइम वॉज फॉर द ईयर एंडेड, मतलब अपॉन 12. टुडे इज फॉर 15 months, therefore it is upon 15 months. there is a big difference in upon.
because that depends upon the wordings that has been given. I hope it was understood by you clearly, and that is the reason मैंने दोनों ये आपको बता दिया. So basically in this problem highlight कर लो, आपके टेक्स्ट बुक में इसको हाईलाइट कर लो. लास्ट टाइम के और आज के इसमें वर्डिंग्स में फ़र्क क्या है. देयर आर सम ऑफ द स्टूडेंट्स उनको मे बी कोई फ़र्क नहीं गिरेगा. ओके आप इतना मे भी ध्यान नहीं देते हो, बट जो लोग ध्यान दे रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड लास्ट टाइम्स वर्डिंग्स, लास्ट टाइम्स कैलकुलेशंस, टुडेज वर्डिंग्स, टुडेज कैलकुलेशंस. सो टुडे 300 is prepaid. Let me solve it very fast above. So you will get outer column 1200. The maths is not the problem, बिल्कुल नहीं. The understanding is कि किसके साथ मल्टीप्लाई करना है. What will be the numerator, what will be the denominator. Okay, I think I'll shift back. Fine. Second effect obviously is on the asset side, जो मेरे इस तरफ और इस तरफ आ जाएगा. 300. That's your prepaid insurance. Very similar looking, but mathematically थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व किया है. हाँ, फिर क्या है, सिक्स्थ पॉइंट है डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग. है वो तो मेनी ऑफ यू भी सर वो तो आग बंद करके हम कर लेंगे, तो आई वुडंट से गलत है, आप सही हो. 1250 23,750 फर्स्ट इफेक्ट. सेकेंड P&L obviously. I had a line above, तो मैंने ऊपर लिखा. ऊपर लाइन नहीं है तो बीच में लिखो, बीच में नहीं तो नीचे लिखो, बट डेबिट में लिखो. हाँ, so that is done. 1250. Fine. The last point, sorry, is actually just a point. Reena and Aarti are sharing profit and losses in the capital ratio. Capital ratio 5:3 ऑलरेडी आ चुका है. अब उसको यूज़ करना है. बेसिकली वी आर डन विथ ऑल आर ट्रायल बैलेंस, वी आर डन विथ ऑल द एडजस्टमेंट्स गिवन अबाव. तो चलिए टैली शुरू करते हैं. द डेबिट टोटल 55,300. क्रेडिट टिल टुडे तो ज़्यादा ही रहा है 79,200. आई एम ऑल्सो वेटिंग जहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा जहाँ पे ग्रॉस लॉस आएगा. पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, बट आज तक तो नहीं हुआ. नेट लॉस काफ़ी सम्स में आ चुका है. तो 23,900 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट. पिक इट अप, गो टू द नेक्स्ट पेज, and when you do that, then the net profit, most probably the net profit, the debit total that you will see is थोड़ा odd, 11,893, but credit is heavy क्योंकि gross profit ही ज़्यादा था. 25,485. Now net profit, पहली बात तो net profit, but how much is the net profit? 13,592. Please make sure you wrote that. उसका मल्टीप्लीकेशन आपको थोड़ा टाइम जाएगा, बट नो प्रॉब्लम, प्लीज डू इट. डोंट टेक एंड्रॉयड कैलकुलेटर, नॉर्मल कैलकुलेटर, डोंट टेक एनी कैलकुलेटर. यूज दिस कैलकुलेटर बिकॉज वेर एवर यू गो दिस कैलकुलेटर विल नॉट गो एनीवेयर. मेक श्योर दैट यू शार्पन इट. ओके, का मतलब क्या है, अगर तलवार है ना, वो तलवार को ऐसे ही शोबाजी के लिए दीवार पे रखोगे एंड अगर कभी ज़रूरत पड़ा जंग खाया हुआ होगा. दैट मीन्स तुम कुछ भी करोगे दूसरों को, उसको कुछ लगने वाला नहीं है. तो इसको जंग मत, लेट इट नॉट रस्ट. इट मे बी समथिंग. कुछ लोग सर आपको, आप रहने दो ना सर, आपसे बोलो सर क्या आंसर आया, बाकी हम लोग देख लेंगे. आई डोंट माइंड, बट एटलीस्ट जिनको मुझे सुझाव देना है उनको तो दे दूँ. बाकी जिन लोगों को सुझाव नहीं सुनना है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, सुन के अनसुना कर दो, और क्या कर सकते हैं. ओके, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ अ वन वे लेक्चर राइट नाउ. तो मैं सिर्फ सजेशन दे सकता हूँ, मैं एडवाइस दे सकता हूँ. ओके, क्योंकि पिछले 19 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ. 19 years, दैट्स अ लॉन्ग टाइम. ओके, सिर के बाल या तो चले गए या फिर तो जो बचे हैं वो सफ़ेद हो चुके हैं. तो मैंने, कहते हैं ना माँ बाप या नाना नानी, हमने दुनिया देखी है, विच इज़ ट्रू. ओके, उन्होंने काफ़ी सीजन्स, काफ़ी मानसून समर्स देखे हैं, काफ़ी लोगों को के साथ बातचीत हुई है. सो दे न्यू द गुड एंड द बैड, तो वो शेयर करते हैं. तो मैं भी शेयर कर रहा हूँ. हाँ, 5/8, 3/8, बिकॉज द टेबल ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाई 5 लाइक चुटकी बजा के तो होता नहीं है. एंड स्पेशली द नेट प्रॉफिट इज़ नॉट अ वेरी सिंपल नंबर.
592. But when you do the multiplication, you will get a proper answer 8,495 and 5,097. यहाँ लिख लो, यहाँ से उठा लो, अगले पेज पे जाते हैं. And on the credit side, when you get net loss, so it's on the opposite side. 8,495, 5,097. रीना का टोटल कर लो. क्रेडिट इज हैवी, यू विल गेट एन आंसर ऑन द डेबिट साइड. 58,495 minus 2,000. 56,495. आरती 35,097 minus 1,000. 34,000. ये ओरली हो सकता था. ओके, अदरवाइज नो प्रॉब्लम्स, आप माइनस कर लेना. सो दिस इज क्लोजिंग कैपिटल. ये जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे, टोटल होके बाहर 90,592. ओके, बाकी का लास्ट में वी डू हैव टू गेट द लाइबिलिटी साइड टोटल एंड द एसेट साइड टोटल, द करेक्ट और द सेम, नॉट जस्ट करेक्ट, सेम आना चाहिए. सो 1,16,000. ओके, दिख नहीं रहा है मेरी उंगली. हाँ, 507 और ये मेरे पीछे आएगा 1,16,507. तो did it come the same? Why not? Definitely it came the same. If it does not come the same, what does that mean? Mistake, error, fraud तो नहीं कहूँगा मैं, हाँ, बट कुछ गलती हो गई है. आप बोलोगे सर तुमने सॉल्व किया, आपने गलती की. वेरी ट्रू. अगर दोनों सेम नहीं आएगा तो गलती मेरी ही है. ओके, बट वैसे ही अगर आप खुद से कभी सॉल्व करो एंड इट डज नॉट कम द सेम. मेनी स्टूडेंट्स डू वॉट नो, लाइबिलिटी आ गया, वो आंसर इधर चिपका दो, खत्म करो मामला. मेरा सजेशन होगा वो प्लीज़ मत करना. एड अप द एसेट साइड, मेक श्योर दैट द टोटल कम्स द सेम एज द लाइबिलिटी साइड, बिकॉज इट इज़ नॉट बाय डिफ़ॉल्ट कि हाँ सर दोनों साइड सेम ही तो आता है, दोनों साइड का टोटल क्यों करना है. ओके, तो कुछ चीज़ों में शॉर्टकट चलता है, कुछ चीज़ों में शॉर्टकट मुनासिब सजेस्टेड नहीं है. ओके, सो प्लीज़ मत करना. आई एम रियली होपिंग कि जो आज पढ़ाया गया है, स्पेशली द दन्नो फॉर्मूला, जो हर टाइम नहीं आएगा. टुडे वाज अ यूनिक सिचुएशन, 14वीं का चांद, तो हमको वो करना पड़ा, मुझे वो सिखाना पड़ा, आपको वो मुझसे सीखना पड़ा. नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ बन्नो फॉर्मूला लिखना है. दन्नो फॉर्मूला देयर इज नो नीड टू राइट तब तक जब तक मैं आपको ना बोलो. इफ़ ऑल द एक्सप्लेनेशन वाज अंडरस्टूड, प्लीज़ लेक्चर को लाइक ज़रूर कर लेना. उसके अलावा नथिंग दैट स्पेशल. आपको ये इतना याद रखना है कि कमेंट बॉक्स इज अवेलेबल. कमेंट बॉक्स का उपयोग आप डेफिनेटली करें फॉर एनी डाउट्स, एनी रिक्वेस्ट दैट यू हैव. ओके, ऑब्वियसली इफ़ यू से सर बॉलीवुड का गीत गाओ, नहीं, ऑब्वियसली वो रिक्वेस्ट नहीं होता. रिक्वेस्ट कंसर्निंग एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैटर दैट वाज कोच्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, हाँ, सो उतना ही है. आपको मुझे याद दिलाना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज़ दबा दीजिए. And do take care of yourself, take care of your seniors and juniors, of your lovely family members. Till the time we meet again, good day and God bless. Bye for now.